Hi learners, welcome to Pathway Classes. This side Priyanka and today's topic is practice questions on labor welfare and this is a part 1. So basically in this session we will complete 15 questions on labor welfare. So let's start with the topic. So we have first question, identify the major actors of the industrial relation from the following. So you have 4 choices. First one is employer, second one is union, third one is government and the fourth one is all of above. So the correct option is all of above. That means यहाँ पे जो actors हैं industrial relation के वो employers भी होते हैं, union भी होती है and government भी होती है. So second question is that the authority rests solely with the management with no right to anyone to challenge it is the basis of. So first option is pluralistic approach, second one is system approach, third one is unitary and the fourth one is social action approach. So हमें बताना है ये जो statement है ये कौन से अप्रोच को डिफाइन करती है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज यूनिटरी अप्रोच. यूनिटरी अप्रोच में क्या होता है कि जो भी मैनेजमेंट है वही राइट लेते हैं, सोली उनके पास ही एक ऑप्शन होता है कि वही डिसीजंस को लेते हैं, उनके पास ही राइट होता है और कोई और नहीं ले सकता है. ठीक है. Third question is the balance of power is not vested with any one group, rather it is maintained between the parties of the industrial relation. That is the essence of pluralistic approach, system approach, unitary or the social action approach. So the correct option is pluralistic approach. इसमें ये होता है कि जो भी decisions होंगे वो दोनों parties के बीच में होगी relation में, so that यहाँ पे कोई भी conflict ना हो और जितना भी चीज़ें हैं वो smoothly चले. ठीक है. Fourth question is which act provides a provision of the medical benefits to the insured एम्प्लॉयज़. सो कौन सा एक्ट है जो मेडिकल बेनिफिट्स को प्रोवाइड करता है इंश्योर्ड एम्प्लॉयज़ के लिए. सो द ऑप्शन इज़ फर्स्ट वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट, एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट या फिर कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट. सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ESI एक्ट 1948. ESI एक्ट में यही है कि इंश्योर्ड पर्सन है उनकी फैमिलीज़ को जब भी जो भी मेडिकल बेनिफिट्स हैं वो सारा प्रोवाइडेड होता है एंड अगर वो रिटायर हो जाते हैं या फिर परमानेंटली डिसेबल्ड हो जाते हैं तो उनके स्पाउसेस दैट मीन्स उनके हस्बैंड या फिर उनकी वाइफ को एक टोकन मनी देना पड़ता है ऑफ ₹120 एनुअली. ठीक है. सो साल का ₹120 उन्हें पे करना पड़ता है सो दैट उनको जो भी मेडिकल बेनिफिट्स हैं वो सारा कुछ प्रोवाइड हो जाए इन द एक्ट ऑफ ESI. Fifth question is the performance appraisal method that rates the appraisee on various parameters on the point scale. So एक point scale होता है, वहाँ पे बहुत सारे parameters होते हैं so that performance को identify किया जाए हर एक individual person के लिए. So वो कौन सा method है, critical incident है, MBO है, graphical rating है या फिर bell curve appraisal है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ग्राफिक रेटिंग शीट. एक प्रॉपर एक ग्राफिक रेटिंग होती है, ग्राफ्स के बेसिस पे होती है और वहाँ पे कुछ पैरामीटर्स होते हैं. देन उसके बाद वहाँ पे जो भी परफॉर्मेंस है उसको देखा जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है. सिक्स क्वेश्चन इज़ जॉब इवैल्यूएशन इज़ अ टेक्निक दैट एम्स एट. जॉब इवैल्यूएशन एक ऐसी टेक्निक है जिससे क्या होता है, एस्टेब्लिशिंग फेयर एंड इक्विटेबल पे स्ट्रक्चर. Second is analyzing of the requirement of updating technology, accessing safety requirements of the job or improving productivity. So the correct option is establishing fair and equitable pay structure because job evaluation का मतलब क्या है कि वर्थ जो भी वर्थ है जॉब की वो आइडेंटिफाई करना, क्योंकि हर एक जॉब का जो वर्थ है वो अलग अलग है, उनकी सैलरीज अलग अलग होती हैं, पे स्केल अलग अलग होता है. सो इसीलिए जॉब इवैल्यूएशन का यही मेन एक वे है कि वो वर्थ को डिफ़ाइन करे, जॉब की वर्थ को डिफ़ाइन करे ऑर्गेनाइजेशन में. सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ए, दैट इज़ एस्टेब्लिशिंग फेयर एंड इक्विटेबल पे स्ट्रक्चर. Seventh question, as per the Factories Act 1948, canteen should be provided in the factory where more than dash employees are employed. So Factories Act के अगर हम देखें कैंटीन में कितने वर्कर्स होने चाहिए. ठीक है. सो द ऑप्शन इज़ 100, 250, 600 या फिर 1000. सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ बी, दैट इज़ 250. मोर देन 250 वर्कर्स जो हैं वो यहाँ पर होने चाहिए एज पर द फैक्ट्रीज एक्ट इन कैंटीन फैसिलिटीज़. Eighth question, which act of the parliament define trade union and governs much of the law on industrial relation. So कौन सा एक्ट है जो ट्रेड यूनियन को डिफाइन करता है
इन पार्लियामेंट एंड जो भी इंडस्ट्रियल रिलेशन के आइडियाज़ होते हैं या फिर जो भी चीज़ें होती हैं वो गवर्न करते हैं, कौन सा एक्ट है। सो आंसर हमारा हो जाएगा, ऑप्शंस हमारे पास हैं ट्रेड यूनियन एक्ट 1955, ट्रेड यूनियन एंड लेबर रिलेशन एक्ट 2005, ट्रेड यूनियन एंड लेबर रिलेशन एक्ट 1991 एंड ट्रेड यूनियन एंड लेबर रिलेशन एक्ट 1992. So the correct option is that D, that is labor, trade union and labor relation act 1992. सो ये जो एक्ट है ये यूके पार्लियामेंट से है, यूके का एक्ट है एंड ये रेगुलेट भी यूके से ही होता है, और ये प्रॉपरली जो एक्ट है ये एप्लीकेबल है इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में, और पार्शली अगर हम देखें तो नॉर्दर्न आयरलैंड में भी एप्लीकेबल है। 9th question is which of the following best explain the term union ballot? So you have 4 choices, so just read out all the choices and choose your correct option. So the correct option is A, that is ballot is the system by which union members vote. So एक यूनियन बैलॉट एक ऐसा ऑप्शन है जहाँ पर वोटिंग होती है, यूनियन मेंबर्स वोट करते हैं और वो भी मतलब सीक्रेटली वोट होता है, एक प्रॉपर पेपर दे दिया जाता है एंड देन उसके बाद सीक्रेटली वोटिंग प्रॉपरली होती है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। 10th question is which of the following is not the characteristics of the trade union? So कौन सा ऐसा characteristics है जो trade union का नहीं है? So you have 4 choices: voluntary association, common goals, intermediary या फिर individual actions. So the correct option is individual action, because individually तो यहाँ पे work होता नहीं है trade union में. So the correct option क्या हो गया हमारा? individual action. 11th question, what should be the minimum number of the persons required to register the trade union? So minimum number of requirement कितनी होनी चाहिए registration of the trade union में? 6, 7, 8 या फिर 9. So the correct option is 7. 7 members का जो registration में जो applicability है वो होनी चाहिए. 7 members का मतलब मंजूरी होनी चाहिए for registration of the trade union. 12th question, Bain and Slag argue industrial relation are concerned with. So Bain and Slag ने argue किया था industrial relation में, तो वो कौन सी एक statement है जो उनके आर्ग्यूमेंट को डिफ़ाइन करती है। ऐसे ही क्वेश्चंस आ जाते हैं जैसे कि कोई भी ऐसे डेवलपर हैं या फिर राइटर हैं, उनको डिफ़ाइन के लिए बोला जाता है और चॉइसेस दे दी जाती हैं आपको, तो वो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं बिकॉज इससे भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। So the correct option is C, that is making and administrating of the rules that regulates the employment relation regardless of whether these are seen as formal or informal, structured or unstructured. So industrial relation में उन्होंने यही बोला है कि employment को रेगुलेट करे, वो rules जो employment को रेगुलेट करे, ना कि ये देखें कि वो formal है, informal है या फिर structured है या फिर unstructured है। So ये उन्होंने क्या था Bain and Slag में। 13 question, first NCL submitted its report in the year, जो फर्स्ट नेशनल कमीशन ऑन लेबर है तो उन्होंने कब रिपोर्ट को सबमिट किया था पहली बार। सो ऑप्शंस हमारे पास हैं 1969, 1958, 1999 या फिर 1947। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ए, दैट इज़ 1969। 1969 में ये जो रिपोर्ट है ये सबमिट हो गई थी और बेसिकली ये डील किसके साथ करती है, लेबर प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं उसमें एग्जामिन करना, उसको डिटेल्ड फॉर्म में एक्सप्लेन करना, तो एनसीएल का यही काम है फॉर बोथ द ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स। 14th क्वेश्चन, द फर्स्ट फैक्ट्रीज एक्ट वॉज इनेक्टेड इन, जो पहली बार फैक्ट्रीज एक्ट इनेक्ट हुआ था वो कौन से ईयर में हुआ था? 1881, 1895, 1897 या फिर 1885। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ए, दैट इज़ 1881। 1881 में ये अडॉप्ट किया गया था एंड फैक्ट्री कमीशन है वो 1885 में हुआ अपॉइंटेड, एंड इसका मेन पर्पस क्या है कि जो वर्किंग आवर्स है उनको रिड्यूस करना और इम्प्रूव करना वर्किंग कंडीशंस को। अब है 15th क्वेश्चन एंड दिस इज़ अ लास्ट क्वेश्चन, द टर्म सबैटिकल इज़ कनेक्टेड विद, तो जो टर्म है सबैटिकल ये किससे कनेक्ट है? पेड लीव फॉर स्टडी है, पेटर्निटी है, मैटरनिटी है, फिर क्वारंटाइन लीव है। सो द आंसर इज़ ए, दैट इज़ पेड लीव फॉर स्टडी। सबैटिकल एक ऐसा मीनिंग है, एक ऐसी टर्म है जहाँ पे ब्रेक लिया जाता है, एम्प्लॉयज़ ब्रेक ले सकते हैं अपने वर्क से बिकॉज उनको अपना जो भी इंटरेस्ट है उसको परस्यू करना पड़ता है, जैसे कि ट्रैवलिंग हो गया, स्टडी हो गया या फिर और अदर एक्टिविटीज़ हैं, उनके लिए उनको ब्रेक लेना पड़ता है वर्क से, जॉब से। सो दैट्स इट फॉर नाउ स्टूडेंट्स, आई होप ये सारा जो सेशन है ये आपको क्लियर हो गया होगा।
So thank you and have a nice day. Bye bye. Take care.